ओके ठीक है 8051 interrupts fine what is interrupt when the 8051 microcontroller is executing a program and any event occurs and that event stops the flow of the program we can call it as an interrupt correct when you are studying and somebody disturbs you that is an interrupt right. Now this interrupt can be external interrupt or can be internal interrupt. When you are studying, at that time, somebody knocks the door. Is it an external interrupt or internal? External. Sir? External interrupt, right? Can you give me example of internal interrupt? Mobile? Mobile phone. She has given example of mobile phone. Can mobile phone be considered as an internal interrupt? You are a processor. You are a system. So the interrupts which are generated inside the system are called as internal interrupt. And outside the system, external interrupt. So tell me, you are a processor, you are a system, you are studying, and you get an interrupt. And that interrupt is an internal interrupt. So can you tell me the example of internal interrupt? Yes? Start thinking. Singing. You feel hungry. That is an internal interrupt. So what do you do when you feel hungry? You are studying. You get up. You stop studying. You go out, go to the kitchen, and have some food. Right? So you are executing a program for study, but you have to interrupt that and come back. Once you get an interrupt, you have to service that interrupt. You have to provide service to that interrupt, correct? That means when you feel hungry, you have to get up from place, stop studying, go to the kitchen, open the fridge, have something, come back and start studying again. That is called as servicing the interrupt. And in microcontrollers, it is called as interrupt service routine, ISR. Interrupt service routine. Now see, you have written a program like this. The program is stored in the memory, right? And each and every time I have been giving you example of the memory, the way the program is stored. So you have addresses. And you have programs stored in the hex format, right? That is clear to you, right? Program is always stored in the hexadecimal format. So in the memory, say 3T, 4P, 55, 4, 5, 3, 0, 2. These are all hex codes. You write a program in assembly language or a higher level language, and you get converted. You convert that program into hex code, and that hex code is written in the memory like this. And these are all memory locations, and each memory location has got its address, right? These are the memory locations. This is what a program is. Each memory location has got its own address, correct? Now the interrupt occurs. मतलब माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट आता है. अब ये इंटरप्ट कैसे आता है? That you have first see. एक्सटर्नल इंटरप्ट अगर है तो माइक्रोकंट्रोलर को एक्सटर्नल इंटरप्ट कैसे जनरेट होंगे? तो when you have studied microcontroller, that time port 3 there were two pins, INT0, INT1. There were two pins, and on these two pins, when the low signal is generated like this, the microcontroller understands that there is an interrupt. So there will be some external circuitry connected to this pin, which will generate this kind of signal. I hope you are able to understand what I am saying. कोई एक्सटर्नल सर्किटरी कनेक्टेड रहता है इस पिन को या इस पिन को, और वो एक्सटर्नल सर्किटरी का काम क्या रहता है, जब भी इसको माइक्रोकंट्रोलर को इंटरप्ट करना होगा
तो इस तरह का सिग्नल जनरेट करेगी। तो ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन कब आ सकती है? से फॉर एग्जाम्पल, your microcontroller system has been installed in this building and it is monitoring the various parameters of building. That means temperature कितना है, say for example, humidity कितनी है, और कोई भी अदर बाकी के पैरामीटर्स है। इसके लिए आपने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, और आपने इस बीम को एक ऐसा सर्किट कनेक्ट किया जो स्मोक डिटेक्ट करेगा। स्मोक डिटेक्टर जानते हो? Why it is used? To detect smoke. Why you need to detect smoke? Why you need to detect smoke? In order to generate an alarm whenever the smoke is detected. क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जहां पे धुआं हो, आग वहीं पे लगी होती है या लगने वाली होती है। तो पहले धुआं आता है, फिर आग लगती है, बराबर है कि नहीं? तो जब धुआं आए तो आपको एक सर्किट बनाना चाहिए जो डिटेक्ट करे कि धुआं आ रहा है। तो इसके लिए स्मोक डिटेक्टर यूज होता है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली वी कॉल दैट सर्किट इज अ फायर अलार्म, है ना? तो इफ दैट सर्किट इज कनेक्टेड हियर, दिस बीम okay, so or smoke detector, smoke detector circuitry is connected to INT0P. So what is the role of the smoke detector circuitry? Whenever it detects smoke, I'm not going to go detail the circuit. It's very easy circuit that you can build which can detect the smoke. That could be a minor project you can do. So whenever it detects a smoke, circuitry is designed in such a way that it generates this kind of signal. Now, when this kind of signal is generated, you have to write a code. You have to write a program. What kind of program that you are going to write? Whenever this kind of interrupt is generated, microcontroller should stop doing whatever it is doing currently, whatever program that it is executing, and it should cater to the interrupt. मतलब इंटरप्ट को सर्विस उसमें देना चाहिए। इंटरप्ट को सर्विस देना चाहिए मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्मोक डिटेक्ट होगा, स्मोक डिटेक्ट होगा तो एक अलार्म बजेगा। यू कैन राइट अ प्रोग्राम टू रिंग अ बेल और हूटर और अलार्म दैट इज कनेक्टेड टू 8051। तो 8051 के आउटपुट पिन को आप कोई एक अलार्म लगा दो जो बजेगा एज सून एज देयर इज अ स्मोक डिटेक्टेड। Correct? So that is the use of external interrupt pin. You can build any number of circuits, different circuits at different purposes. This is just an example. एक example मैंने दिया कि अगर आग लगी है तो एक सिग्नल जनरेट होगा, माइक्रोकंट्रोलर will stop doing whatever it is doing currently और अलार्म बजाएगा और वापस अपना काम चालू करेगा और स्प्रिंकलर चालू करेगा, पानी के स्प्रिंकलर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे मॉल्स में वगैरह ऊपर देखो छत पे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, वैसे देख के आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वहां पे स्प्रिंकलर्स रहते हैं, वहां पे स्मोक डिटेक्टर्स भी रहते हैं। जब भी आग लगती है तो स्प्रिंकलर्स अपने आप चालू होते हैं। या फिर आपने मॉल में देखा रहेगा कि जब आप दरवाजे के पास जाते हो तो अचानक से दरवाजा खुल जाता है, या एस्केलेटर के पास जाते हो तो अचानक एस्केलेटर चालू हो जाता है ना, देखा है ना? वॉशरूम में गए हो तो हाथ आगे करते हो पानी चालू होता है। नेसेसरी नहीं ये सारे सर्किट माइक्रोकंट्रोलर में चलते होंगे, लेकिन चल सकते हैं। आप इंटरप्ट जनरेट कर सकते हो और इंटरप्ट से आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो कि अगर ये इंटरप्ट आई तो ये कर, ठीक है? तो इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट, ये इंटरप्ट इंटरनल ही है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल, क्योंकि ये पिन पे बाहर से वो इंटरप्ट आ रही है। जैसे कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था, कल पेपर है, आप पढ़ाई कर रहे हो हमेशा की तरह, कल पेपर है तो पहली रात को आप पढ़ाई करते हो, उससे पहले वाली रात को आप पढ़ाई करते हो, राइट? हाँ, बाकी दिन आप पढ़ाई नहीं करते हो ना, कल पेपर है तो पहले दिन पढ़ाई करते हो। वो पहले दिन की पढ़ाई वाली रहती है तो आप इंपॉर्टेंट रहती है, आपको यू डोंट वांट एनीबॉडी टू डिस्टर्ब यू मैडम,
except person who is going to tell you important questions. कल ये एग्जाम में आने वाला है, उसको आप अलाउ कर दो। बाकी सबको इंटरप्ट, मम्मी को बोलते हो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब यू ट्राई टू मास्क द इंटरप्ट। मास्किंग पता है ना, मास्किंग ऑफ इंटरप्ट। तो फिर अगर मम्मी नॉक करती है या फोन बजता है तो वो एक्सटर्नली इंटरप्ट जनरेट है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो वो इंटरप्ट अंदर से जनरेट हुई। और कौन से इंटरप्ट अंदर से जनरेट होते हैं आपको पता है? तो अगर वो इंटरप्ट अंदर से अपने बॉडी के अंदर से जनरेट होता है और आपको अगर उठना पड़े तो वो इंटरनल इंटरप्ट है। और बाहर से अगर कोई नॉक करता है आपको उठना पड़े या फोन बजता है उठना पड़े तो, या फिर बिजली गिरती है तो आपको उठना पड़ेगा, भूकंप होता है तो आपको उठना पड़ेगा। ये सारे इंटरप्ट जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, ठीक है? तो माइक्रो कंट्रोलर में 8051 में 5 इंटरप्ट्स हैं। कितने हैं? 5 इंटरप्ट्स। इन जनरल देयर आर 5 इंटरप्ट्स। कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं? ये 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट हो गए। उसके बाद में आपके पास 2 टाइमर्स हैं, राइट? टाइमर 0 और टाइमर 1। तो टाइमर 0 को एक इंटरप्ट दिया हुआ है और टाइमर 1 को एक इंटरप्ट दिया हुआ है और फिर एक सीरियल को दिया हुआ है, सीरियल कम्युनिकेशन। तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। 2 एक्सटर्नल, 2 टाइमर के और एक सीरियल कम्युनिकेशन का, टोटल 5। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो रीसेट पिन होता है उसको जो सिग्नल आता है वो भी इंटरप्ट में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि रीसेट सिग्नल, क्योंकि एक रीसेट पिन है, याद है ना? 8051 में एक रीसेट पिन भी होता है और उस पिन पे जब आप सिग्नल देते हो तो क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है। जहां कहां वो हो, जो भी एग्जीक्यूट करता हो वो छोड़ के डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है। डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है मतलब क्या होता है? सारे जितने भी ऐसे कॉल रहते हैं उनके डिफॉल्ट स्टेट में चले जाते हैं। प्रोग्राम काउंटर 0000 हो जाता है, प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करना चालू करता है और 8051। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट स्टेट। इसके लिए रीसेट पिन कभी कभी आपने देखा रहेगा, मोबाइल रीसेट भी करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। रीसेट नहीं होता है, कोई ऐसा पिन नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर में रीसेट आपने देखा रहेगा। एक आप दबा के रखो तो वो रीसेट हो जाता है, आप जस्ट प्रेस करो तो रीसेट होता है। तो रीसेट मतलब कंप्यूटर को 0 से स्टार्ट करना, पहले इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना। तो रीसेट भी कभी कभी एज अ इंटरप्ट गिना जाता है। तो इफ यू आर आस्क्ड इन एग्जाम कि कितने इंटरप्ट्स हैं? 5 + 1 टोटल 6, ठीक है? इन जनरल 5, बट इफ यू कंसीडर रीसेट एज एन इंटरप्ट इट इज 6। यू गेट इट? 5 इंटरप्ट्स कौन से? 6 इंटरप्ट कौन से? याद है? याद हो गए क्लियरली? ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? ये मेन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता रहता है और सपोज यहां पे इंटरप्ट आ गया, ठीक है? अब मेमोरी लोकेशन में मेरी रिकॉर्ड है। सो सपोज 0001 02 03 04 05 06 ये मेमोरी है, ठीक है? ये एड्रेस है और ये एड्रेस पे आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है। सपोज माइक्रो कंट्रोलर जब 0003 लोकेशन में था और तब इंटरप्ट आ गई, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी इंटरप्ट आ गई, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा? माइक्रो कंट्रोलर विल स्टॉप एक्सिक्यूटिंग फर्दर प्रोग्राम, ओके? एंड व्हाट इट विल डू? First it will finish executing the instruction written at 0003 and then it will jump, remember this very carefully, and then it will jump to the location where interrupt service routine is written. Now let me ask you again, what is interrupt service routine? Just now I explained in the beginning of the lecture. What is interrupt service routine?
इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो प्रोग्राम है जो आप लिखते हो और वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी इंटरप्ट आती है, वो पर्टिकुलर इंटरप्ट आती है। मतलब आपको प्यास लगी, आपको प्यास लगी, इज इट इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट? इंटरनल इंटरप्ट। तो उसके लिए प्रोग्राम क्या लिखा गया आपके दिमाग में? उठो, किचन में जाओ, टैप ऑन करो, पानी पियो, या फ्रिज खोलो, जिधर पानी रखा है वो ले लो और पानी पियो। बराबर है? ये जो प्रोग्राम है आपके दिमाग में फीड किया हुआ, उसको बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, है ना? तो वैसे माइक्रो कंट्रोलर में भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखा जाता है, और वो लिखने वाले कौन है? आप, प्रोग्रामर। तो लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना, ये तो आपका मेन प्रोग्राम हो गया। तो कहां पे लिखे हुए ISR? मेमोरी में ही लिखोगे, ठीक है? तो मेमोरी में कोई तो लोकेशन रहेगा, से मैं लिखता हूं 4000, ये ऐसे करके 4000 लोकेशन आएगा ना, है कि नहीं? तो मैं 4000 पे कुछ लिख देता हूं, 46, 78, 79, ये आपका हेक्स कोड प्रोग्राम है। तो मैंने ISR कौन से लोकेशन पे लिखा? 4000। मैं कौन से लोकेशन पे था पहले? जब इंटरप्ट आया 0003। अब माइक्रो कंट्रोलर को क्या करना है, कहां पे जंप मारनी है? 4000। माइक्रो कंट्रोलर को ये एड्रेस कौन देता है? नहीं, प्रोग्राम काउंटर। Program counter is a register which tells microcontroller from where to fetch the next instruction. तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाता है 4000 को, और माइक्रोकंट्रोलर जंप करता है 4000 पे। अब 4000 के बाद के इंस्ट्रक्शन जो है वो ISR है, आपको पता है, माइक्रोकंट्रोलर को नहीं पता। माइक्रोकंट्रोलर अपना काम करेगा, जिसको वो प्रोग्राम काउंटर जो बोलेगा वहां पे जंप मारेगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब प्रोग्राम जब ISR कंप्लीट हो गया, मतलब आपका पानी पी के हो गया, आपको क्या करना है? वापस आना है और उसी पेज से शुरू करना है पढ़ना, जिस पेज पे आप थे, या उसके नेक्स्ट पेज से। आपने पेज पूरा खत्म करके गए थे, तो उसके नेक्स्ट पेज से। तो मुझे एक बात बोलो, अगर नेक्स्ट पेज से शुरू करना है तो आपको पानी पीने को जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? वो पेज नंबर है जिसके ऊपर आप वापस आना है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। जो ध्यान में रखते नहीं है वो लोग बुकमार्क लगा देते हैं, इतना कौन तकलीफ लेगा? ध्यान में रखो पेज नंबर। और कई कई इतने विद्वान होते हैं कि जब पानी पी के आते हैं तो सब भूल जाते हैं, पढ़ाई जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, पेज नंबर कौन सा था वो भी भूल जाते हैं, पहले पेज से स्टार्ट करते पढ़ना, कहीं जाके पता चलता हो अरे तो मैंने पढ़ा फिर से। Anyway, we are not talking about those. ठीक है? तो माइक्रो कंट्रोलर भी वैसे ही करता है। यहां पे जंप मारने से पहले वो 0004 ये जो लोकेशन है वो कहीं पे तो स्टोर कर लेता है। You get it? So I have added one more step. मैंने आपको क्या बोला? Microcontroller is executing a program. It is at 0003 memory location. Interrupt occurs and it jumps to 4000. But before jumping to location 4000, it will store the next memory location where it has to come back and start executing the main program. समझ में आया? तो ये 0004 वो टेम्परेरीली कहीं पे तो वो स्टोर कर लेता है। तो कोई बता सकता है मुझे वो कहां पे स्टोर करता होगा? करेक्ट। तो टेम्परेरीली मैंने जब वर्ड यूज किया तो आपको इंटरनली पता होना चाहिए वो स्टैक पे पुश करता है, अपने आप अंदर ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो जाता है। ठीक है? अब ये एग्जीक्यूट करेगा ISR, और ISR के लास्ट में हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं
अगर आप असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं RETI, written from the interrupt service routine, written from the interrupt service routine. RETI मतलब आपने ये सब लिखा, नीचे लिखोगे RETI मतलब इसका आउटपुट आएगा, एक्सपोर्ट आएगा. There are two instructions, RET and RETI. दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन इंटरप्ट में जब वापस आते हो तो RETI लिखना. I have asked you to start studying all the instructions, okay, of your own. You got a book, read all the instructions. यहाँ पे बुक में पद्धति में नहीं है, डायरेक्टली वन बाय वन इंस्ट्रक्शन आप दूसरा कोई इंटरनेट से निकाल लो. ठीक है, तो जब भी वापस आता है तो माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोग्राम काउंटर है अगेन गेट्स अपडेटेड विद द न्यू एड्रेस 0004. माइक्रो कंट्रोलर वहां पे आके मेन प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करता है. तो ये सारे स्टेप्स हैं. कोई भी इंटरप्ट आती है तो कौन से स्टेप्स है, उसमें भी छोटे छोटे और भी बीच बीच में स्टेप है. लेकिन पहले आप ये समझ लो कि जब भी माइक्रो कंट्रोलर को कोई इंटरप्ट आती है तो कौन कौन से स्टेप्स वो माइक्रो कंट्रोलर लेता है. नंबर 1, इंटरप्ट आई, जनरेट हुई, आइदर एक्सटर्नल इंटरप्ट और इंटरनल इंटरप्ट. फिर क्या हुआ? नंबर 2, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2, माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो स्टोर कर लिया. ठीक है, फिर माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया? जंप किया. फिर माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया? ISR एग्जीक्यूट किया. फिर माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया? ISR के लास्ट में RETI इंस्ट्रक्शन आई, तो उसने RETI आने के बाद जहां पे उसने वो स्टोर किया था नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 0004 को निकाल दिया, वापस लेके आया, प्रोग्राम काउंटर अपडेट किया और फिर वो वहीं से एग्जीक्यूशन चालू हो गया.